ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम दावत देना चाहेंगे हाफिज़ मुबश्शिर। हालांकि वो तो हैं हाफिज़, लेकिन देखने में भी आपको बड़े लगेंगे, लेकिन वो बड़े नहीं हैं और इसी कोचिंग के स्टूडेंट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ कम हियर हाफिज़ मुबश्शिर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او کما قال علیہ السلام. بزم نشاط آج دو عالم پہ چھا گیا، بزم نشاط آج دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. نہ عشق رسول نہ ذوق شہادت، نہ عشق رسول نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. پھر نہ تم کرنا کبھی تشنے لبوں کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا. برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، میں اس رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین. میں اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند ہی منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ہر ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. ریا و بادشاہ کو حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے، والدین کے عزت و احترام و آداب کو پامال کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم و زیادتی کی برسات کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک ہمیں دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح،
मुझे बताओ तो सही, क्या उनके इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए? क्या उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जाए? क्या उनके इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक़ नहीं है। मैं अपनी तरफ से भी नहीं कहता, बल्कि हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत उमामा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक़ क्या है? सुनो मेरे नबी का प्यारा जवाब तो सुनो। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतु का वनारु, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम है। हदीस शरीफ में गौर करिए, वालिदैन का हक़ क्या है? हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर तुम वालिदैन की इज्जत व एहतराम करोगे और उनकी फरमा बरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे, और उन पर जुल्म ज़्यादती और बुरा सलूक करोगे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैं एक शेर भी कहा था, इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, फिर न तुम करना कभी तिश्ने लबों के शिकवे, आज मैं खाने का मैं खाना उठा लाऊंगा। अजीज़ाने मिल्लत, इल्म दो तरह का होता है, एक दुनियावी एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज़्ज़त व शौकत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया ही तक महदूद रहता है, और उखरवी इल्म दुनिया व आखिरत दोनों जगह ज़िल्लत और रुसवाई से निजात दिलाता है और इज़्ज़त व शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी बिना पर अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा बना लिया? वो कौन सी शय थी जिसकी बिना पर अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब बना लिया? वो इल्म की दौलत ही है। इसलिए कहा गया है एक शेर, नसीहत कीजिए जिसको हमें समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। गालिबन ये वाक़या पाकिस्तान में पेश है, बहुत सारी किताबों में भी लिखा है। एक नौजवान नौकरी करता था, तो नौजवान अपने नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की, तो उस नौजवान को गुस्सा आ गया और नौजवान अपनी माँ को मारने के लिए गया, तो बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। इतना सख्त दिल नौजवान था कि सजदे की वाक़या बोल रहा था, फिर शुरू से सुन लीजिए। एक नौजवान नौकरी से घर आया तो उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की, तो उस नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए गया, तो बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान सजदे की हालत में माँ की गर्दन पर पैर रखा, इस ज़ोर से रखा कि माँ मालिक हकीकी से जा मिली। उस नौजवान और चचाजाद भाई ने माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार की। फिर माँ को कब्र में उतारने के लिए वो नौजवान और चचाजाद भाई दोनों उतरे। चचाजाद भाई तो सही सलामत कब्र से बाहर निकल गए, लेकिन वो नौजवान कब्र से निकलने की कोशिश की तो कब्र ने उसे फ़ौरन दबोच लिया, अपने अंदर खींच लिया। नौजवान दहशत ज़दा और डर की वजह से चिल्लाने लगा। बहुत सारे लोगों ने उस नौजवान की हर मुमकिन कोशिश की निकालने की, लेकिन कामयाब न हो सके। बहुत सारे लोगों ने दुआ भी की, लेकिन किसी की भी दुआ कारगर न हुई। आखिरकार नौजवान तड़प तड़प कर मर गया। लोगों ने मजबूरन उसी पर मिट्टी डाल दी। जब उस नौजवान की बीवी को पता चला तो रो रो कर बयान करने लगी कि दोषी और ख़ताकार तो मैं हूँ कि मैंने ही माँ के ख़िलाफ़ जहर उगला था। इसलिए कहा जाता है आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आप हज़रात के सामने खुतबा में सूरह बनी इसराइल की जो आयत तिलावत की थी, उसमें यही फरमाया गया है कि रब्बे कायनात इंसान को ताकीद फरमा रहा है कि तुम उस खालिक़ुस समावात और पालनहार की वो बंदगी की फरमा बरदारी करो
फिर फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि आगे और इरशाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन में से कोई या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उनको उफ भी मत कहना और न उनको झिड़को और उनके साथ खूब इज्जत व एहतराम के साथ गुफ्तगू करना और उनके आगे आजिज़ी के बाजू बिछा देना और उनके लिए ये दुआ करते रहना इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ रब्बे कायनात इन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला है। एक मरतबा मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबा किराम तरफ उठे और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी नाक खाक आलूद हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अदरक वालिदैहि इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा थुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने वालिदैन में से किसी को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाया हो फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार और मुस्तहिक न बना हो। वालिदैन की खिदमत करना फ़र्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित है, मुहसिन कायनात के कलाम से साबित है, सहाबा किराम के अक़वाल से साबित है, अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल से साबित है। बिरादराने मिल्लत जिस औलाद से वालिदैन नाराज़ रहते हैं तो रब्बे कायनात भी नाराज़ रहते हैं। तो हज़रत तिरमिज़ी शरीफ जिल्द थानी और सफ़ा नंबर 12 पे यह हदीस शरीफ मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु की एक रवायत मौजूद है। वह फरमाते हैं कि शहंशाह बतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है रिदल रब्बी फ़ी रिदल वालिद व सख़त रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। अगर किसी औलाद से वालिदैन रज़ामंद है तो रब्बे कायनात उससे राज़ी, मुहसिन इंसानियत उससे राज़ी, सहाबा किराम उससे राज़ी, अर्श इलाही उससे राज़ी, जन्नत हूर उससे राज़ी, मलाइका उससे राज़ी, इंसान जिन उससे राज़ी, ज़र्राह कायनात उससे राज़ी। और अगर नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, मलाइका की भी उस पर लानत, सहाबा किराम की भी उस पर लानत। एक हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो नेक व सालेह औलाद अपने वालिदैन की जानिब मोहब्बत भरी नज़र से एक मरतबा देखे तो हक़ ताला उसको एक मकबूल हज का सवाब देंगे। तब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई सालेह औलाद एक दिन में 100 मरतबा देखे तो क्या उसको 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा? तो उस मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निअमल्लाहु अकबर व तय्यब। हाँ रब्बे कायनात की आता और बख्शिश से तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है। अज़ीज़ाने मिल्लत हदीस शरीफ पर गौर करिए, सिर्फ मोहब्बत भरी नज़र से देखने का इतना सवाब है जो वालिदैन को हम वक्त खुश रखने और उसके खिदमत व फरमा बरदारी में लगे रहते हैं उनका दर्जा रब्बे कायनात के पास कितना बुलंद व अरफा होगा। और एक बात मैं आपके गोश गुजार कर देना मुनासिब समझता हूँ कि माँ का हक़ बाप के हक़ के मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों ना हो, रब्बे कायनात ने जो मकाम माँ को अता किया वो बाप को नहीं किया। माँ बच्चों के लिए तकालीफ़ व मसाइब को बर्दाश्त करती है, माँ बच्चों के लिए सर्दी को बर्दाश्त करती है, माँ बच्चों के लिए अपनी नींद को कुर्बान करती है, माँ बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है जो बाप नहीं कर सकता। इसीलिए नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बाप पर फ़ौक़ियत दी है। बुखारी शरीफ जिल्द थानी में यह हदीस 483 पर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स आया और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मन अहक़ बिहुस्नि सहाबा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्मक तेरी माँ। फिर सवाल किया सुम्मा मन, फिर कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया उम्मक तेरी माँ। ऐसे ही 3 मरतबा सवाल किया, फिर वही जवाब मिला। जब चौथी मरतबा सवाल किया तो शहंशाह बता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम अबुअक, फिर तेरा बाप।
मैं ये भी नहीं कहता कि माँ कुछ नहीं, बाप कुछ नहीं करता। बाप बच्चों की खातिर मुसीबत को अपने सर पर रख देता है, उन बच्चों की दिलकश मुस्कुराहट देखने की खातिर अपना वतन छोड़ता है, परदेश को इख्तियार करता है, रुपये कमा कर लाता है, बच्चों को तालीम देता है, बच्चों को अच्छा लिबास पहनाता है, बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, उन रुपयों से बच्चों का राहत का इंतज़ाम करता है। बाप बच्चों की खातिर इन तमाम कुर्बानियों को बर्दाश्त करता है, लेकिन याद रखे बाप की तमाम कुर्बानियाँ माँ के उस वक्त का मुकाबला नहीं कर सकते जिस वक्त माँ वक्त काट कर तुमको जन्म देती है। एक आखिरी वाक़या बताकर मैं अपनी बयान को ख़त्म करता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत, वालिदैन के नाफरमाने और उनके साथ घिनौनी और हरकत करने के नतीजा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया ही में दिखा देते हैं, जैसा कि मैंने माक़बल में एक वाक़या भी बताया था। लेकिन एक सहाबी है, बहुत साले इंसान है, जिसका नाम अलक़मा है। नमाज की पाबंदी करते हैं, नफलत को कसरत से पढ़ते हैं, ज़कात और सदका अदा करते हैं, अमाल साले के पाबंद है, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंतकाल के वक्त ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं होता और वो गले में अटकी हुई थी। तमाम लोग दुआ कर रहे थे, कुरान की तलावत की जा रही थी, लेकिन रूह जिस्म से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अलक़मा तकलीफ़ की वजह से तड़प रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या की इत्तला दी गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके वालिदैन ज़िंदा है। इत्तला मिली कि सिर्फ़ वालिदा हयात है। माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, अलक़मा के साथ तेरा कैसा सलूक था? बुढ़िया ने कहा कि मेरा लख्ते जिगर बहुत नेक व सालेह था, लेकिन उसने अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।